Hello and welcome to The Big Fight. There has been over the last couple of weeks a lot of discussion over dress and dress code. It's not the first time it's happened, but now you even have the chairperson of the NCW saying, be comfortable, but at the same time, be careful about how you dress. And then, of course, a large number of Khap Panchayats, starting with Asara Panchayat, says that women should be really careful about what they are wearing. And at a time when we've just had the Guwahati incident and a number of other instances of molestation and harassment, is dress something that should be a part of it? Or should women be entitled to wear what they want and yet, of course, be... Is that absolutely fine? There should be no question of anybody using that as an excuse to come and molest them or harass them. So these are some of the questions that we are going to be discussing. Let me start off by welcoming the panelists. Sohambri Devi, the president of the Bharatiya Kisan Union Women's Wing, is with us right here. She's come with her grandchild, Vaishali Kumari, who is joining us actually on the podium. Madhu Mehra, women's rights activist and lawyer. Great to have you with us. Pooja Bedi, actor. Thanks, Pooja, for being with us once again. Bina Lakshmi Nepramenchal is a writer and an activist who has strong views on the subject, so it's great that you could join us, Bina Lakshmi. We have with us Mr. Yudhvir Singh, who is the General Secretary of the All India Jat Mahasabha. Great that you could be with us. Mr. T.R. Kakkar, former Commissioner of Police. It's wonderful that you could join us. And joining us from Jammu is Zahid Ali, spokesperson of the Jamaat-e-Islami in Jammu and Kashmir. Of course, the Jamaat had recently said that for tourists and especially foreigners who are coming in mini skirts and other objectionable dresses should watch what they are wearing because it's against the ethos and the culture. So that's what he said. We'll get everyone's point of view. But let me just start off with Sohambri Devi. आपको क्यों लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि वो क्या पहन रही हैं? साहब मैं भारतीय किसान यूनियन की हूँ, वो मुझे 20 साल हो गए भारतीय किसान यूनियन में रहते साहब। मेरा सन 65 में शादी हुई थी। मेरा आज तक भी वही पहरा है जो पहरा उस दिन मैं पहन कर आई थी, ब्याली आई थी, आज भी मेरा वही पहरावा है। लेकिन मैं गांव में रहती हूँ, मैं इस बात को बहुत महसूस करती हूँ कि लड़की जीन्स पहनती है। जब लड़की जीन्स पहन कर जाती हैं तो लड़के उनकी तरफ को लगाते हैं। हम अपना गाँव में रहने वाला, हम अपना पहराव सही रखा है। पर एक तरह से आपकी मर्जी है जो आपने पहना है। इतने सारे साल आपने जो भी पहना है अपनी मर्जी से पहना है। अगर मान ली एक लड़की है वो कुछ और पहनना चाह रही है तो उसमें क्या खराबी है? नहीं साहब, हम गांव में रहेंगे, हम गलत पहरावा नहीं पहनाएंगे। सूट सलवार पहनो, ठीक है। Why is she wearing a men's shirt? ये पूछ रही आपने आदमी की शर्ट क्यों पहनी है? नहीं जी, मैं कुर्ता पहन रही। कुर्ता है? कुर्ता है, देखो। शायद आप गांव के बारे में नहीं जानती, लेकिन हमारे गांव में सब ऐसे ही कुर्ता पहनते हैं। कुर्ता है तो लेकिन क्या शी इज नॉट वेयरिंग ग्लव्स? बात है ना, कुर्ता है, देखो आप कुर्ता। जी हाँ, लेकिन आप अगर एक साल पहले के देखे रीत रिवाज, एक साल पहले के देखे तो उस वक्त ऐसे शर्ट्स औरत नहीं पहना करती। आप इस बात को मानो, मेरी बात सुनो। वे गुज्जर पहनते हैं, वे शर्ट पहनते हैं, गुजरी, हम नहीं पहनते। अच्छा, और एक और बात, पहले एक ट्रेडिशन था कि एक पर्दा सिस्टम होता था, आपको मुंह ढकना पड़ता था। आज आप सर को ढकते हो लेकिन मुंह को नहीं ढकते। नहीं, मुंह को भी ढकती हूँ। नहीं, आपका मुंह तो खुला है। अजी अब यहाँ तो कोई मेरे गांव को याद में नहीं, जहाँ मैं बहू बनकर गई हूँ वहाँ मुंह ढकती हूँ। हाँ, तो सिर्फ उधर ही ढकते हो, लेकिन बाकी के जगह में जब आप जाते हो, प्लेन में बैठते हो, सवार करते हो, पूरे भारत में जब आप मेरे क्षेत्र के रहने वाले आदमी, मैं कह रही हूँ कि हर जनरेशन जो है, आपका मतलब ये हुआ कि आपके गांव में लड़की को यही पहनावा पहनना चाहिए। हाँ, जीन नहीं, लेकिन बाहर जाती है गांव से तो जीन पहन सकती है, स्कर्ट पहन सकती है। नहीं, आपने खुद कहा कि मैं अपने गांव में तो यही पहनावा होगा, गांव में लड़की ये पहनेगी, लेकिन लड़की गांव से बाहर जाएगी। 7 जिलों में पंचायत चल रही, कल भी पंचायत थी, आज भी बागपत में पंचायत है। मेरी पंचायत इसी बारे में पंचायत है। अब हम जींस नहीं पहन देंगे। पंचायत को छोड़िए आप, बहुत दूर बम्बई तक पंचायत में जाऊँ मैं। गांव से बाहर जाकर लड़की जीन पहन सकती है, स्कर्ट्स पहन सकती है, मिनीज पहन सकती है? नहीं। तो इसका मतलब आपने पूरी रेस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। Only she can bend the rules when she travels outside, nobody else can. No, even she won't. No, she's uncovered her face. वैशाली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप भी ये सलवार सूट पहनती हैं तो अपनी मर्जी से पहनती हैं? जी, अपनी मर्जी से पहनती हूँ मैं। ठीक है, पर अगर आपकी कोई दोस्त है जो जीन्स पहनना चाहे अपनी मर्जी से, तो उसमें क्या गलती है? मैं उस लड़की के अगेंस्ट में रहूंगी, क्योंकि मैंने अपने जितनी भी फ्रेंड्स को अपनी संस्कृति के बारे में बताया है, वो इस चीज़ से एग्री, उन्होंने सूट पहनना शुरू भी कर दिया है। मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी जी इटली से हैं, लेकिन वो इटली से शादी हो जाने के बाद जब वो भारत में आई तो उन्होंने भी भारतीय पहनावा अपनाया।
तो हम भारतीय लड़कियां क्यों सूट सलवार नहीं पहन सकते, क्यों अपना पहनावा क्यों अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं अपना सकते? मधु, पहले तो आपको ये सवाल ये सोचने की जरूरत है कि आपकी दादी जो हैं उन्होंने आपसे अलग ड्रेस डाली है जी, आपने बिल्कुल अलग ड्रेस मॉडर्न सलवार कमीज पहनी है, इनफैक्ट पटियाला की सलवार पहनी जी है, पहनी है। तो आपको नहीं लगता कि आप ऑलरेडी वो परंपरा से हट गई हैं? आपने भी एक हद से अपना फैशन, हर पीढ़ी में हर समाज में परिवर्तन आते ही रहता है। आज आपने रबर बैंड पहना है, कल कुछ और वस्तु आएगी आप वो पहनेंगे, तो ऐसी तो बात नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। तो ये जो दूसरी बात आपने कही कि भारत में साड़ी और सलवार है, भारत की वो ड्रेस भी है, भारत की ये जी, ड्रेस वो भी है, लेकिन भारत के लिए जीन्स और पैंट्स भी उतनी ही है। आपके बहुत से उधर लोग होंगे, जो आदमी होंगे जो पैंट शर्ट पहनते हैं, वो भी भारतीय हैं। तो आपको ये जो एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हम परंपरा पर, आपके खुद के पहनावे में दिख रहा है कि जी, परंपरा तो ये मैं मानती हूँ कि हर पीढ़ी में बदलाव आता है, वो मुझसे मतलब काफी बड़ी है, उनकी और मेरी लैंग्वेज में भी फर्क है। रही दूसरी बात कि उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, हाँ ये बात अलग है। क्या वो सूट सलवार पहनेंगी? आप ही बताइए। नहीं, आप क्यों नहीं उनके जैसे ड्रेस करती हैं अगर आप परंपरा को बचाने के लिए? एक लड़की और एक औरत के पहनावे में फर्क होता है। अच्छा, ठीक है। Okay, now can I just ask you, at the end of the day, if she says that I want to wear a particular dress out of my own free will, that's fine. And she says that I think my friend should wear the same dress because it is an Indian culture. Is there anything wrong with saying that, so long as there's no compulsion? There's nothing wrong with saying it, but the problem is with expecting it. There's a big difference in every generation, subtle changes sometimes, dramatic changes sometimes. I think it's not about the fact that she's worn the Indian outfit, because essentially when we stick to what we call traditions, it's all about morality, and therefore it boils down eventually to face showing and skin showing. So essentially what she's worn today can be considered traditional because of the cut of the outfit. But the fact is she's still showing her arms, she's still showing her neck. These things are not acceptable in villages, at least 100 years ago. There's been a dramatic change from Sonbiri's mom, who covered her face, to Sonbiri ji herself, who's now uncovered her face, to her granddaughter today, who will stand here with, you know, her arms showing and, you know, her hair uncovered completely. Every generation has a change. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.